حج کے ارکان اور حج کے مسائل سمجھنے کے لیے یہاں گفتگو کرنے کے لیے گپ کرنے کے لیے نہیں تشریف لائی ہیں، اس لیے صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور حج کے سلسلے کے جو مسائل اور احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اسے غور سے سنیں۔ ابھی نماز ظہر اور کھانے سے پہلے تک عمرہ کے احکامات بیان کیے گئے تھے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ مکہ معظمہ میں ہیں اور ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ہم لوگوں کو منی جانا ہے۔ چونکہ ہم لوگوں نے حج تمتع کیا ہے اور حج تمتع میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، احرام کھل جاتا ہے، ہم لوگوں کا احرام کھول دیتے ہیں اور مکے میں جتنے دنوں باقی ہے ٹھہرے رہتے ہیں۔ جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہوتی ہے تو ہم لوگ حج کا احرام مکے سے باندھ کر کے حرم شریف سے یا حدود حرم میں سے کہیں سے بھی اپنے ہوٹل سے احرام باندھتے ہیں، حج کا احرام باندھ کر کے چلتے ہیں۔ احرام کے سلسلے میں ایک بات اور بھی پیش نظر رہے کہ احرام جیسا کہ ہم نے پہلے بتلایا، اس چادر کا نام احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادر ہے، یہ خود احرام نہیں ہے۔ احرام دراصل نیت اور تلبیہ کا نام ہے۔ جب ہم نیت کر لیتے ہیں، تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم احرام میں آ گئے، اب ہم محرم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ احرام میں آنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح کی بے سلی ہوئی بغیر سلے ہوئے کپڑے جسم پہ ڈال لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو کہا گیا کہ عمرے کے ارکان ادا کر لیں گے تو احرام سے اب نکل جائیں گے، تو احرام سے نکلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سلے ہوئے کپڑے کو ہم نے اتار دیا اور پاجامہ پہن لیا، شرٹ پینٹ پہن لیا، کرتا پہن لیا تو ہم احرام سے نکل گئے۔ نہیں، احرام سے نہیں نکلے۔ احرام سے نکلنا ہوتا ہے بال کٹوانے کے بعد یا بال منڈوانے کے بعد، یا عورتیں بھی اپنے سر میں سے پورے بال کو برابر کرنے کے بعد پیچھے سے 1 انگلی کے بقدر بال کٹوا لیں تو احرام سے نکلنا ہو گیا۔ یہ اب احرام سے نکلنا ہوا۔ سر کا بال، مرد حضرات سر کا بال کٹوائے بغیر یا عورتیں بھی 1 انگشت کے بغیر بال کٹوائے بغیر، اگر مثلا مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور 12 گھنٹہ یا اس سے زیادہ سلے ہوئے کپڑے پہنے رہ جائیں تو ارکان ادا کر لینے کے باوجود سر کا بال منڈوائے بغیر اگر سلے ہوئے کپڑے پہن لیا ہم نے نہا دھو کر کے تو یہ جنایت ہو گئی احرام کے اوپر۔ احرام کے اوپر ایک جرم ہو گیا کہ احرام سے ابھی نکلے نہیں اور ہم نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ احرام سے نہیں نکلے ہیں ابھی۔ احرام سے نکلنا احرام کی چادر اتار کر کے پھینک دینے سے نہیں ہوگا،
एहराम से निकलना होगा सर का बाल मुंडवाने या घुटवाने से। एहराम की ममनुआत यानी एहराम की वजह से जो चीजें हमारे ऊपर हराम हो गई थी, औरतों से मिलना, नाखून तराशना, खुशबू लगाना, चेहरे ढकना, सर ढकना, सिले हुए कपड़े पहनना, शिकार करना वगैरह जालिक, ये सब ममनुआत एहराम ये एहराम से निकलने के बाद जायज होता है। और एहराम से निकलना होगा सर का बाल मुंडवा करके या सर का बाल घुटवा करके, इसके बगैर नहीं। इस चीज को अच्छी तरह समझें। दूसरे ये समझ लें कि एहराम से हम कब निकले? सर का बाल मुंडवाने से। अगर हमने अभी हज के अरकान अदा नहीं किए हैं, हज के अरकान अभी हमारे बाकी हैं और हमको जरूरत है मसलन गुस्ल करने की, चाहे गुस्ल तबर्रुद के लिए हो, ठंडक हासिल करने के लिए हो, गर्मी की शिद्दत में, हरासमेंट की वजह से, दौड़ धूप की वजह से, पसीने वगैरह की वजह से गुस्ल करने की ख्वाहिश है, ऐसे ही गुस्ल करना है। या गुस्ल वाजिब हो गया, एहतिलाम वगैरह हो गया, गुस्ल वाजिब हो गया, फर्ज हो गया, तो अगर हम एहराम उतार देते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से यह नहीं होगा कि हमने एहराम खोल दिया। एहराम खोलना इसको नहीं कहते, इससे एहराम नहीं खुल जाता है हमारा। हम चाहे 10 चादर बदल लें, 10 मरतबा गुस्ल कर लें, हर मरतबा चादर बदल लें एहराम की, तो उससे एहराम हमारा खुल नहीं जाता है। जैसे नमाज के एहराम में हम दाखिल हो गए, तो अब हम नमाज के एहराम से कैसे निकलेंगे? तशहुद आखिर में तशहुद पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सलाम के बाद हम एहराम नमाज से निकलते हैं। ऐसे ही एहराम हज से या एहराम उम्रा से बाल मुंडवाने या घुटवाने के बाद, या औरतें एक अंगुष्ठ के बकदर अपने सर का बाल कटवा लेने के बाद एहराम से निकल जाती हैं। ये मतलब होता है एहराम से निकलने का। क्या बांधने का? बांधने क्या, एक सहबंद है उसको बांध लेना है। इस तरीके से बांध लेना है कि पर्दा हमारा बाकी रहे, हवा हुआ चले तो उसमें पर्दा ये नहीं हो। अब मिसाल के तौर पर ये है कि नहीं, इसको अपनी जगह पर खड़ा रहते हुए भी हम बांध सकते हैं। ये इस तरीके से ये लिया यहां तक, कैसे कराना है? एक तो शक्ल ये हो है? कोई जरूरी नहीं है, वो तो आदमी के कद के एतबार से, छोटा बड़ा आदमी है, नाटे कद का है, लंबा दराज आदमी है, तो उस एतबार से 2.5 मीटर 2.25 मीटर ले सकता है। हम ज्यादा अपने हमारी कद कामत को देख रहे हैं, हम 2.25 मीटर को पसंद करते हैं नीचे के लिए खास तौर पर। तो अब एक शक्ल तो ये है कि ऐसे हम पैर फैला लें, है कि नहीं, और इसको यहां तक हम ले आए जहां तक ये आ सका, और उसके बाद इसको यहां लाया और यहां ला करके इस तरीके से हमने मोड़ लिया, है कि नहीं। अब ये ऐसा हो गया कि इतना लंबा कदम भी हम अपना उठाते हैं, मसलन तवाफ में या सई में तेज चलते हैं, यह तेज चलने के हम आदी ही हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत तेज चलने के आदी हैं, यानी बेतकल्लुफ भी चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं, तो अब कदम जाहिर है तेज होता है। तो ऐसी सूरत में हमारी लुंगी अगर हम ऐसे खड़े खड़े बांध लेते हैं तो इसका दायरा जो है तंग होता है, फिर कदम अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ये हमारी लुंगी का नीचे का फांस हमको हमारे कदम को रोकेगा, तो हम गिर जा सकते हैं। और हरम शरीफ के अंदर इतनी भीड़ होती है
خاص طور پر جب وہ حج کے ایام بالکل قریب ہو جائیں گے، یعنی 2-4-5 دن جب باقی رہ جائے گا اور مدینہ مومنٹ بھی ختم ہو گیا، مدینہ مومنٹ بھی سمٹ کر کے اب مکے میں آ گیا، تو ایسی صورت میں بہت زیادہ بھیڑ. تو اگر کہیں خدا نہ خواستہ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے گرے تو پھر اس کے بعد اٹھنا شاید ناممکن ہو جائے. ہاں شاید ناممکن ہو جائے. تو اس وجہ سے بس اس کے باندھنے کا ہم نے کہا کہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اگر اتنا پھیلا کر کے اور اس کے بعد باندھ لیا، ایک دائرے کو یعنی بائیں طرف سے لا کر کے دائیں یہاں بنا لیا اور اس کے اوپر سے یہ یہاں لے آئے اور اس کے بعد اس کو الٹ دیا، تو اب وہ دائرہ ایسا ہو گیا کہ عام ہوا چلنے کی وجہ سے بے پردگی بھی نہیں ہوگی اور لمبا قدم بڑھانے کے بعد بھی وہ پھانس نہیں بنے گا اور وہ لنگی ہم کو روکے گی نہیں اور گرنے کا اندیشہ اس میں نہیں ہوگا. تو بہرحال 8ویں ذی الحجہ کو روانہ ہو گئے آپ، احرام باندھا آپ نے مسجد حرام میں، حرم شریف میں، اپنے ہوٹل میں یا مکہ میں کہیں پر بھی احرام باندھنے کے بعد روانہ ہو گئے مینا کی جانب. مینا میں اس دن پہنچ کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں ذی الحجہ کے فجر کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں، سنت ہے، افضل ہے. اگر کوئی آدمی وہاں 8ویں ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے نہ پہنچا، شام کو پہنچا، رات کے وقت میں نہ پہنچا، صرف عشاء کی نماز وہاں پڑھا، عشاء کی بھی نماز نہیں پڑھا، 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا، وہ بھی نہیں پڑھا، مکے سے ڈائریکٹ روانہ ہو گیا عرفات کے لیے، تو اس کے اوپر دم واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی واجب نہیں چھوڑا ہے. ہاں خلاف سنت کیا ہے، سنت کو چھوڑنے کا گناہ جو ہوگا وہ تو ہوگا. سنت چھوڑا ہے اس نے، واجب نہیں چھوڑا ہے، اس لیے اس کے اوپر دم وغیرہ نہیں ہے. 9ویں ذی الحجہ کو اور بسا اوقات معلم کی گاڑی 8ویں ذی الحجہ ہی کو رات میں آ کر کے لگ جاتی ہے آپ کے خیمے کے سامنے. 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات ہی میں آپ کو وہاں سے عرفات مومنٹ شروع کر دیا جاتا ہے، عرفات کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. چلو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر کے روانہ ہونا یہ سنت تھا، افضل تھا. لیکن جب معلم کی گاڑی آ گئی اور ہم معلم کی گاڑی کے تابع ہیں اس اعتبار سے، اس وجہ سے کہ عرفات میں ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا خیمہ کہاں پہ ہے، اور اگر ہم کو دے بھی دیا گیا ہے اسٹیکر کہ عرفات میں ہمارا خیمہ کہاں ہے، تو عرفات کی ساری سڑکیں باہم ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور وہاں جمع غفیر ہے، 50-60 لاکھ کا مجمع جمع ہے، اور ہندوستانی جھنڈے بھی 1-2 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں مختلف خطوں میں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آپ جائیں گے یہاں تو معلوم ہے تو ہندوستانی جھنڈا، لیکن وہ ہے کیرالا والوں کا. اب وہاں آپ کو کسی خیمے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اگر آپ کا خیمہ وہ نہیں، اور لو کی شدت ہوگی، دھوپ کی شدت ہوگی. 2017 میں ٹرکوں کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھے، قافلہ والا چلا جا رہا ہے پھر اٹھے، اور آخر یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے پاکستانی خیمے میں جا کر کے بے ہوش ہو کر کے میں گر گیا. یہ بھائی مجیر تھے برہمپورہ کے اور چمپارن نام رام نگر کے دوست احباب تھے، ڈاکٹر معیز صاحب تھے، یہ ڈاکٹر قاسم صاحب اور لوگ تھے. اب وہ بیچارے پاکستانیوں نے سر پہ پانی چھیٹا، ہاتھ پیر وغیرہ، لو لگ گئی بہت بری طریقے سے. پھر اس کے بعد تو یہ نوبت کوئی گھسنے نہیں دے گا اپنے خیمے میں جس میں آپ کا یہ نہیں ہے. آپ کہاں تلاشتے پھریں گے؟ دیکھنے میں لگے گا کہ یہاں ہے اور گھوم کر کے جا رہے ہیں، 3-3 میل 4-4 میل گھومنا پڑ جائے گا بسا اوقات.
اس لیے معلم کی گاڑی ہی سے جائیں، سب سے بہتر یہ معلم کی گاڑی آپ کے اصل خیمے تک پہنچا دے گی، وہاں جا کر کے رہیں۔ وقوف عرفہ کا اصل وقت جو شروع ہوتا ہے وہ زوال آفتاب، 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب کے بعد سے۔ اب جب زوال آفتاب ہو گیا، اب اس میں ایک تو یہ بتلایا تھا کہ مسجد نمیرہ کے اندر آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی۔ ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز کا سلام پھیرے گا امام، اور فوراً ہی عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ عصر کی نماز کے لیے تکبیر بھی ہوگی، دوسری تکبیر نماز کے لیے عصر کی نماز بھی ہوگی، یہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر خیمے میں اپنے رہ رہے ہیں، مسجد نمیرہ میں نہیں گئے اور خیمے ہی میں رہتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک افضل یہی ہے کہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا جائے اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں اپنے خیمے میں پڑھیں۔ مسجد نمیرہ میں اگر پڑھیں گے، امام حج، امام موسم حج کا جو امام پڑھا رہا ہے اس کی ابتدا میں، تب تو عصر کو بھی ظہر کے متصلاً بعد ظہر کے وقت میں ہی پڑھنا ہے۔ لیکن اگر اپنے خیمے میں پڑھنا ہے تو احناف کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ جمع بین الصلاتین یہ ہمارے نزدیک امام موسم حج کے تابع ہے اور مسجد نمیرہ کے تابع ہے۔ لیکن اگر انفرادی طور پر کوئی پڑھتا ہے یا مسجد نمیرہ میں نہیں پڑھتا ہے، یہ امام موسم حج کے تابع ہو، اس کی اقتداء میں نہیں پڑھتا ہے، اپنے خیمے میں پڑھتا ہے، تو پھر جمع بین الصلاتین کا حکم ہمارے نزدیک نہیں۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر زیادہ کچھ، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر آدمی زیادہ رجڈ ہو، زیادہ اصرار کرے کسی بات کے اوپر، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا سے لوگ پہنچتے ہیں جو الگ الگ مسلکوں کے ماننے والے ہیں، الگ الگ سبوں کی تہذیب ہے، تمدن ہے، رکھ رکھاؤ ہے، کھانا پینا ہے، طرز رہائش ہے، یہاں تک کہ لباس ہے۔ اب افریقی اور حبشی لوگوں کو، نائجیریا وغیرہ والوں کو دیکھیں گے تو ان کے لباس ہوں گے بڑے بڑے یہاں تک کہ، اور ان کے پیٹھ پر معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ چلا جا رہا ہے، مسجد نبوی چلی جا رہی ہے، یعنی وہ تصویریں بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر اس طریقے سے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے لوگ ہوں گے، وہ پنجگانہ نماز پڑھیں گے، ہم لوگ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہ لوگ ہاتھ ایسے کھلا لمبا چھوڑیں گے۔ شیعہ حضرات بھی اسی طریقے سے ہاتھ تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے نہیں، ہاتھ کھلا چھوڑیں گے۔ بقیہ اور ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ باندھ لیا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی کسی کے ہاں سینہ پر ہاتھ باندھنا مسنون ہے، کسی کے ہاں پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنا مسنون ہے، کسی کے ہاں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ناک کے نیچے باندھنا مسنون ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی حدیث کی دلیلیں، لہذا ان چیزوں میں جھگڑنا اور رجد ہونا اور اپنے مسلک کو کسی کے اوپر تھوپنا یہ سب درست نہیں ہے۔ حج تو اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن حج البیت فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، الحج اشہر معلومات، فمن الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے اندر نہ تو گالی گلوج ہے، نہ فسق و فجور کا کام ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہے، کسی طریقے کی اختلاف و انتشار اور لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض مسلک کے لوگوں میں یہ ہے
کہ चाहे जितने दिनों भी आप मक्का में ठहरे हो, हज के अंदर जब आएंगे तो मिना, अरफात, मुजदलिफा में कसर ही करेंगे। जबकि दूसरे बहुत से अइम्मा का हाल ये है, उनका कौल ये है कि अगर आप मक्के में रहते हुए मुसाफिर ही हैं, यानी मिना मोमेंट शुरू होने से पहले पहले तक आप कितने, आपका मक्के में क़याम हफ्ता दिन हुआ है, 8 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है और 14 दिन से कम कम हुआ है, तो आप मुसाफिर हैं। उस सूरत में तो मिना, मुज़दलिफा, अरफात में आप कसर करेंगे। लेकिन अगर आप मक्के में 14 दिन क़याम आपका हो चुका या 14 दिन से ज्यादा क़याम आपका हो चुका तो आप मुकीम हो गए। जब आप मुकीम हो गए और आप जा रहे हैं अब अरफात, वहां से वापस आ रहे हैं मुज़दलिफा, जा रहे हैं मिना, तो मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में जिन नमाजों का वक्त आएगा, आप अगर वहां के इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं नमाज, तब तो इमाम के ताबे हैं, वो जितनी पढ़ाएंगे, मसलन 4 रकत तो आप भी 4 रकत पढ़ेंगे। और अगर आप तन्हा अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और यहां आप मुकीम नहीं हुए, मुसाफिर हैं, तो ऐसी सूरत में आप कसर करेंगे। और अगर मुकीम हो चुके हैं 14-15 दिन या उससे ज्यादा आप रह चुके हैं मक्का में, तब आप ऐसी सूरत में पूरी नमाज पढ़ेंगे, मुज़दलिफा में भी, मिना में भी, अरफात में। जुमा का दिन था, बाबुल मलिक फहद से दाखिल होकर के बेसमेंट में मैं गया, तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे। ये भाई अलाउद्दीन साहब, कम्मू भाई के भाई अली अलाउद्दीन, ये भी साथ में थे और भी लोग थे, कुछ कश्मीरी हिंदुस्तानी भी थे, कुछ पाकिस्तानी भी थे। वो उम्मुल कुरा के एक प्रोफेसर वो समझाने लगे कि आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारे उलमा ने हमको समझा बुझा करके भेजा है, जैसे हमारे उलमा ने हमको ट्रेनिंग दिया है, समझाया, हम उस तरीके से अमल करेंगे। कहा कि भाई ये कौन दलील हुई, ये कोई बात हुई कि हमारे उलमा ने, आपके उलमा क्या जाने, उलमा तो मक्के के जानेंगे, मदीने के जाएंगे। भाई नाना के घर की बात को खालू, खाला और मामू ज्यादा जानेगी कि दूसरे लोग ज्यादा जानेंगे। तो इस्लाम यहां से पनपा, नबी यहां भेजे गए, रसूल यहां भेजे गए, दीन यहां से चला, तो दीन की बातें यहां के लोग ज्यादा जानेंगे या हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जानेंगे? उनको क्या मालूम। हम तिलावत कर रहे थे, बहुत देर तक उनकी बात सुनते रहे, उसके बाद हम मुतवज्जे हुए। हमने उम्मुल कुरा के उस प्रोफेसर से कहा, जो पाकिस्तानी था असल में, हमने कहा कि आप क्या समझा रहे हैं इनको? इन्होंने जो बात कही, आपको जवाब दिया, ये बड़ी सलामती की बात थी कि भाई हमको हमारे उलमा ने जो समझा करके भेजा है, हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। अब आप उनको इस तरीके से कह रहे हैं। हमने कहा कि अच्छा आप ये बतलाइए कि आप ये कह रहे हैं कि हर हाल में, चाहे हम यहां मुकीम हो जाएं तो भी, मुसाफिर रहें तो भी, हम मिना, अरफात, मुज़दलिफा में कसर ही करेंगे। तो हाँ, यही हुक्म है, यह हज का रुकन है। हमने कहा कि ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग, खानदान के लोग, उनके दोस्त अहबाब ज्यादा जानेंगे या आज 1450 साल के बाद के नासिरुद्दीन अलबानी और सालेहुल उसैमीन जानेंगे? आप लोग जानेंगे। तलमलाया कुछ अरब हजरात से, वो भी मुतवज्जे हो गए मेरी बात, खासतौर पर नासिरुद्दीन अलबानी साहब। इनका नाम सुनने के बाद, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जमाने आखिर के सऊदी अरबिया बड़े नामवर आलिम गुजरे हैं, अभी हाल फिलहाल 100 साल पहले। मुतवज्जे हो गया उनका नाम सुन करके। हमने कहा कि ये हज के अफआल नहीं हैं, हज के अरकान नहीं हैं। अगर मुसाफिर होगा तो कसर करेगा, मुकीम होगा तो पूरी नमाज इत्माम करेगा। कहां से कहते हैं? हमने कहा कि अभी मैं परसों ही मदीने से आ रहा हूं और मदीने से मैंने 2 किताबें लाई हैं, और वो किताब हमारे अपने मसलक की नहीं है। वो किताब एक है ज़ादुल मआद फी हदी खैरिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ لکھی ہوئی ہے علامہ ابن قیم کی، اور علامہ ابن قیم شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے۔ نہ ناصر الدین البانی ابن تیمیہ کے مساوی ہو سکتے ہیں اور نہ صالح العثیمین ابن تیمیہ کے برابر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے زاد المعاد کے اندر، زاد المعاد کی حل خیر العباد کے اندر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور امارت میں حج کیا۔ حج میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس سال منی عرفات مزدلفہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قصر کیا، کوئی بات نہیں قصر کیا۔ مدینے سے آئے تھے 450 کلومیٹر کی دوری سے آئے تھے، قصر کیا۔ اگلے سال پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا، قافلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ اس سال انہوں نے حج کیا اور منی عرفات مزدلفہ میں انہوں نے اتمام کیا، یعنی پوری 4 رکعتیں پڑھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، عشاء کی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ دیا، امیر المومنین آپ نے پچھلے سال تو ان مقامات پہ قصر کیا تھا، اس سال ان مقامات پہ آپ اتمام کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پچھلے سال ہم مسافر تھے، ہم نے قصر کیا، اور اس سال یہاں آنے کے بعد ہم نے مکے میں شادی کر لیا، شادی کر لیا تو ہم مکی ہو گئے۔ تأہلنا فأتممنا، ہم نے یہاں شادی کر لیا، یہاں ہم نے اپنے اہل و عیال بنا لیے، تو اب ہم مکی ہو گئے، یہاں مقیم ہو گئے، اور مقیم ہو گئے اس لیے ہم نے اتمام کیا۔ معلوم ہوا کہ منی عرفات مزدلفہ وغیرہ میں قصر اور اتمام کا مسئلہ یہ حج کے ارکان سے متعلق نہیں بلکہ مسافرت اور اقامت کے اوپر مبنی۔ بہرحال آپ منی سے عرفات روانہ ہو جائیں۔ عرفات میں وقوف عرفہ جب زوال کے بعد نماز، دونوں نمازیں آپ مسجد نمیرہ میں پڑھ چکے ہیں یا اپنے خیمے میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر پڑھ چکے ہیں، تو ظہر کے فارغ ہونے کے بعد عصر تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، اور اگر آپ نے مسجد نمیرہ میں دونوں نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد سے مستقل دعا میں، تکبیر میں، تحلیل میں، تصدیق تقدیس میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ خوب زیادہ سے زیادہ تضرع و زاری کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے خوب خوب دعائیں کریں۔ عرفات کا مقام وہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو کسی بھی دن پوری زندگی میں پورے سال میں کبھی بھی اتنا ذلیل و خوار نہیں دیکھا گیا جتنا ذلیل و خوار وہ عرفات کے دن یوم عرفہ میں ہوتا ہے۔ دیکھا لوگوں نے کہ وہ اپنے سروں پہ خاک ڈال رہا ہے، اپنے سر کے بال نوچ رہا ہے انسانی شکل میں، اپنے بدن کے وہ چمڑے نوچ رہا ہے، اپنی لباس چیر پھاڑ کر رہا ہے، واویلا مچا رہا ہے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے، ایسی ذلت اور نکبت کا حال کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پوری زندگی اور پورے سال کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ میں جو انتھک کوششیں کر کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اس کے دین سے دور کیا تھا، اللہ سے دور کیا تھا، دین و شریعت سے دور کیا تھا،
आज के दिन उन सारे इंसानों की माफी हो गई, सब माफ कर दिए गए। मेरे साल भर की कराई हुई कमाई खाकिस्तर होकर के रह गई, सब मलिया मेट होकर के रह। अरफा का दिन ऐसा दिन है, लिहाजा उस दिन को सोने पड़ने में न गुजारा जाए। भाई पूरी जिंदगी राहत व आराम में गुजारा है, पूरे साल राहत व आराम में गुजारा है। ये चंद दिन जो अल्लाह ने नसीब फरमाए हैं, उस दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी माफी मांग लें, अपनी रिश्तेदारी और जहन्नम से खलासी का परवाना लेकर के यहां से रवाना। जब आफताब गुरूब हो जाए तब अरफात से मुजदलिफा के लिए रवाना हो, और गुरूब आफताब से पहले अरफात का मैदान छोड़ देना हराम है, जायज नहीं। अगर कोई आदमी आफताब अभी डूबा नहीं था और पहले ही अरफात के हुदूद से निकल गया, आपको कैसे मालूम होगा कि अरफात के हुदूद से हम निकल गए? चार जानिब अरफात के अंदर बड़े बड़े बोर्ड आवेजा हैं, ये इस दीवार से उस दीवार तक बोर्ड लगा हुआ है, 4-5 हाथ ऊंचा और 10-12 हाथ चौड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि हुदूद अरफात, हुदूद अरफात, हुदूद अरफात, और निहायत अरफात, अरफा एंड अरफात, निहायत अरफात। मबदओ मसलन मुजदलिफा और मिना के अंदर है ना, एंड मुजदलिफा, मबदओ वो बिदायत मिना, मिना की इब्तिदा, मिना की शुरुआत, मुजदलिफा का खात्मा वगैरह जालिक। अरफात और मुजदलिफा के दरमियान तो बहुत सारी जगह है, वादी है जो ना अरफात है ना मुजदलिफा है। तो बहरहाल हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, निहायत अरफात या बिदायत अरफात। इधर से देखेंगे तो लिखा हुआ बिदायत अरफात, मुजदलिफा से आ रहे हैं तो अरफात में जाना, अरफात शुरू हो गया। जब अरफात से निकल रहे हैं तो बोर्ड पर लिखा हुआ है निहायत अरफात, अरफात एंड कर रहा है, खत्म हो रहा है, अरफात के हुदूद अब खत्म हो रहे हैं। तो बहरहाल गुरूब आफताब से पहले अरफात को छोड़कर निकल जाना जायज नहीं। अगर कोई आदमी गुरूब आफताब से पहले मैदान अरफात से निकल गया और गुरूब आफताब से पहले पहले वापस नहीं चला गया अरफात में, तो उस आदमी के ऊपर एक दम वाजिब है, एक बकरे, मेंढे या दुम्बे की कुर्बानी देना वाजिब है। हाँ, अगर कोई आदमी गुरूब आफताब से पहले निकल गया लेकिन बाद में मुलाकात हो गई मौलाना इकबाल साहब से, अरे हम तो अभी मैदान अरफात आइए रहे हैं, आज तो निकल के जा भी रहा है, कहां जा रहे हो? तो मुजदलिफा जा रहे हैं, एकदम उस तरफ मिना के एंड पर जाकर के हम वहां पर अपना बुरिया बिस्तरा लगा देंगे ताकि कल सुबह सवेरे उठते ही धड़ से हम मिना में दाखिल हो जाएंगे और जमरा अक़बा की रमी कर लेंगे। तो अभी सूरज डूबा ही नहीं है तो अरफात से निकल कैसे गया? जाओ जाओ वापस जाओ अरफात में, नहीं तो दम लाजिम आ जाए। ऐसी बात है, दम लाजिम हो जाएगा। हाँ, दम लाजिम हो जाएगा। वापस आ गया, गुरूब आफताब से पहले निकला था लेकिन वापस भी आ गया आफताब डूबने से पहले पहले, तब उस आदमी के ऊपर दम नहीं वाजिब होगा, दम साकित हो जाएगा, दम देने से बच जाएगा। ये पहले बयान कर चुके कि वकूफ अरफा का वक्त ज़वाले आफताब से लेकर के वक्त अफजल गुरूब आफताब तक, और वक्त जायज कब तक है? 10वीं ज़िलहिज्जा का सुबह सादिक तुलू होने से पहले पहले। अब आप गुरूब आफताब के बाद अरफात से रवाना हो, मुजदलिफा के अंदर आपको रात गुजारनी है। मगरिब का वक्त तो हो चुका था आपका अरफात में, लेकिन अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी, मुजदलिफा के रास्ते में भी नहीं पढ़नी, बल्कि मुजदलिफा में पहुंच करके, अगर आप मुजदलिफा पहुंच गए इशा का वक्त होने से पहले ही, तो भी मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि मगरिब की नमाज पढ़नी है कब? इशा का वक्त जब हो जाए, मस्जिद मशअर हराम से, जो मशअर हराम पहाड़ी का नाम है, कहां? मुजदलिफा में,
उस पर मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद मशार हराम। तो उस पहाड़ी के ऊपर बनी मस्जिद, वहां से अजान की आवाज आती है। ईशा की अजान जब हो जाएगी तो अब गोया मगरिब का वक्त भी वहां उस मकाम पे उसी वक्त शुरू हो। अब मगरिब की नमाज पढ़नी है और फिर ईशा की नमाज पढ़नी है। बेअज़ानिन व इकामतिन, एक ही अजान और एक ही इकामत, अलग से इकामत नहीं कही जाएगी। वहां तो मस्जिद नमेरा में जोहर की अजान हुई, इकामत भी हुई और असर के लिए इकामत कही गई और असर की नमाज हुई। यहां पर मगरिब के लिए अजान पुकारा, ये इतने सारे लोग थे मुजफ्फरपुर वाले, एक ही जगह इत्तेफाक से थे, अजान पुकारा। अजान के बाद मगरिब के लिए इकामत कही गई, मगरिब की नमाज पढ़ा और मगरिब की 3 रकअत नमाज पढ़ने के बाद क्या हुई, ईशा की नमाज शुरू कर दिया। ईशा की नमाज अगर मुकीम है तो 4 रकअत पढ़ेंगे और अगर मुसाफिर है तो 2 रकअत पढ़ेंगे, 2 रकअत पढ़ा। उसके बाद तब मगरिब की सुन्नत भी पढ़ेंगे, ईशा की सुन्नत भी पढ़ेंगे और वितर पढ़ना हो उसी वक्त तो वितर पढ़ेंगे, या ईशा वितर को मुअख्खर करके पढ़ना हो रात के आखिर हिस्से में तो उस वक्त पढ़ेंगे। बाकी रात क्या करेंगे, बाकी रात थके मानते हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, सुस्ता लीजिए, भूख लग गई है तो कुछ खा पी भी लीजिए। लेकिन मिना अरफात मुज़दलिफा में ज्यादा जो है दबा दबा करके ना खाइएगा, इसलिए कि अगर तकाजा हो गया तो टॉयलेट बने हुए तो हैं, लेकिन हर टॉयलेट पर इतनी लंबी लंबी कतार लगी हुई होगी, समझा ना, कि उसके बाद हमारी तकरीर याद आने लगेगी कि मौलाना ने फरमाया था कि नहीं, दबा दबा करके नहीं खाना चाहिए, जरा एहतियाती से। और सूखा सूखा खाएं, बिस्कुट वगैरह, चने के भुने वगैरह, इस तरह की चीजें वो ज्यादा बेहतर है। भात, दाल, बिरयानी, राइस, चावल, वो जीरा राइस है ना, और गोश्त वगैरह, इस सबसे हद तक इनका 2-3 दिनों सब्र को, जबान को जरा सा रोक लेंगे तो क्या उसमें बिगड़ जाएगा, अपना ही फायदा है। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई, इसलिए क्या मुज़दलिफा में बहुत ज्यादा कसीर तादाद में नहीं होंगे मराही। मिना के अंदर तो हर खेमे के बगल में बहुत होंगे, तो उसमें उतनी ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन मुज़दलिफा के अंदर उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होगी। इसलिए खाने पीने में जरा एहतियात से काम लें, रात गुजारें। बकिया सुस्ताने के बाद बकिया रात इबादत इलाही में, नमाज में, तहज्जुद में, जिक्र में, दुआ में गुजारें। दुआ सबसे ज्यादा अहम है सफरे हज में, सबसे ज्यादा मोहतम बिशान चीज दुआएं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने नफिल नमाजों से ज्यादा इन जगहों पे, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में दुआओं का एहतिमाम किया है। बहुत ज्यादा दुआएं मांगी अपने लिए, अपनी सारी उम्मत के लिए और सारी इंसानियत की, इसलिए दुआओं का एहतिमाम करें। और वहां आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रात के आखिर हिस्सा होने से पहले ही, यानी 2 ही बजे रात में मुज़दलिफा से अपना डंडा वंडा और गठरी तठरी को लादा और उसके बाद रवाना हो गए। कहां? मिना जा रहे हैं, मिना जा रहे हैं। और उसमें अगर बहुत बूढ़े पुराने किस्म के लोग हैं, औरतें हैं, तो औरतों के लिए और कमजोर ज़ईफ बूढ़े लोगों के लिए, और इसी तरह से चरवाहे वगैरह जानवरों के चराने वाले, समझ गए नहीं, इस तरह के लोगों को तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी कि रात के आखिर हिस्से में मुज़दलिफा छोड़ दें, मिना जा सकते हैं। औरतों को, बहुत बूढ़े लोगों को, कमजोरों को और जानवरों के चराने उड़ाने वाले, इस तरह के लोगों को इजाजत दी थी। लेकिन जो लोग हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, अधेड़ उम्र के हैं, लेकिन माशाअल्लाह अभी काफी तनोमंद हैं, अभी 2-4 मील खूब अच्छी तरीके से चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं,
ऐसे लोगों के लिए वकूफ मुज़दलिफा वाजिब है, वकूफ मुज़दलिफा वाजिब है। और अगर ये वकूफ छूट जाता है, वकूफ मुज़दलिफा छूट जाता है, तो उसको भी दम देना पड़ेगा, यानी एक मेंढे या दुम्बे या बकरे की कुर्बानी देनी होगी, वाजिब है। ये भी दमे जिनायत है, इस दम की, इस कुर्बानी की का गोश्त खुद नहीं खा सकता, मुजरिम नहीं खा सकता, और अगनिया और मालदार लोग भी नहीं खा सकते, फुकरा के ऊपर सदका करना उसका वाजिब। तो बहरहाल वकूफ मुज़दलिफा का वक्त किस वक्त है? वकूफ मुज़दलिफा का वक्त हज के तमाम मकामात और तमाम अफ़ाल व अरकान में सबसे मुख्तसर वक्त है। सबसे मुख्तसर वक्त किसका है? वकूफ मुज़दलिफा का। कब से कब तक? 10वीं ज़िलहिज्जा का सुबह सादिक तुलू हुआ, तुलू होने से लेकर के आफताब निकलने तक बस इतना सा वक्त है जिसका? वकूफ मुज़दलिफा का। 1 घंटा 22, 23, 24 मिनट के बकदर इतना सा सिर्फ वक्त है किस चीज का? वकूफ मुज़दलिफा का। लिहाजा अगर कोई आदमी सुबह सादिक तुलू होने से पहले हुदूद मुज़दलिफा से बाहर निकल जाता है, मिना चला जाता है, तो उसका वकूफ छूट गया, उसके ऊपर दम लाजिम हो जाएगा। हां, अगर मुतनब्बा करने से, किसी के समझाने से फिर वो लौट करके मुज़दलिफा में आ गया, सूरज निकलने से पहले पहले आ गया, तो उसका दम साकित हो जाएगा, माफ हो जाएगा। बहरहाल वहीं पे मुज़दलिफा ही में, अब चूंकि मुज़दलिफा से रवाना होंगे तो मिना जाएंगे, और मिना में सबसे पहला काम आज क्या है आपका? बड़े शैतान, जमरतुल अक़बा, बड़े शैतान पे कंकरी मारना, 7 कंकरियां मारना है, और उस दिन सिर्फ एक शैतान के ऊपर कंकरी मारना है, ये 10वीं ज़िलहिज्जा को। और फिर 11 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों पे, फिर 12 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों पे कंकरी मारना है। कंकरी यही मुज़दलिफा ही से चुन लें। कितनी कंकरी चुन लें? 12 और 11 दोनों तारीख के 21 कंकरी, 21 गुना 42, और 7 कंकरी पहले दिन की जमरतुल अक़बा की 49 कंकरी। और अगर कोई आदमी फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तका, अगर कोई आदमी इन्हीं दोनों दिनों के बाद 11-12 के बाद जल्दी ही मक्का चला जाना चाहता है तो इसके ऊपर भी कोई हरज नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। और अगर कोई ताखीर करता है 13 ज़िलहिज्जा को भी मिना ही में रह जाता है तो उसके ऊपर भी कोई हरज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या कहा? लिमन इत्तका, उसको मुत्तकी करार दिया है। तो अगर उस दिन की भी 3 जमरात के ऊपर कंकरी तो 21 कंकरी और, तो इस तरीके से एहतियातन गोया 70 कंकरी हो गई तादाद में। ये 70 कंकरी चुन करके और उसको धो ले, और धो करके एक बटुआ में रख ले वहीं। और जब वो पहले जमरे पर पहुंचा तो आज कंकरी मारने का टाइम क्या है, वक्त कौन सा है? आज पहला दिन कंकरी मारने का वक्त आफताब तुलू होने के बाद ही से शुरू हो जाता है। आफताब शुरू होने के बाद से लेकर के ज़वाल तक वक्त अफजल, वक्त मुस्तहब, ज़वाल के बाद से गुरूब तक वक्त जवाब, वक्त मुबाह, जायज वक्त, गुरूब आफताब से लेकर के 11वीं ज़िलहिज्जा के तुलूए सुबह सादिक तक वक्त मकरूह। लेकिन वक्त मकरूह किसके लिए?
वक्त मकरूह तनोमंद लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, सेहतमंदों के लिए, बूढ़ों के लिए, कमजोरों के लिए, औरतों के लिए रात में भी कंकरी मारना मकरूह नहीं है, बिला कराहत जायज। इसी तरह से अगर गुरूब आफ्ताब तक बहुत ज्यादा भीड़ लगी रही, रश बहुत ज्यादा रहा, डर था कि अगर दूर से मारते हैं तो कंकरी अपने जमरात में कंकरी को जहां गिरना था वहां तक पहुंच नहीं सकेगी, और आगे भीड़ में दाखिल होते हैं तो कहीं कुचला न जाए, गिर न जाए, हाथ पैर टूट न जाए, और टूटने का कोई अंदेशा नहीं, वहां तो पिस्ता बन जाने का अंदेशा रहता है। इसलिए अगर कोई आदमी नहीं मार सका तो उसके लिए रात में मारना मकरूह नहीं है। ये पहले दिन की कंकरी। उसके बाद क्या है, कंकरी मार लिया, फारिग हो गए, अब आप मुतमत्ते हैं, आपने हज्जे तमत्तो किया है, लिहाजा आप कुर्बानी कर लें। और अगर आपको टोकन मिल गया है बैंक से कि आपकी कुर्बानी का वक्त ये है, मसलन आपकी कुर्बानी 10वीं ज़िलहिज्जा को 2 बजे कर दी जाएगी मसलन, तो आपने 2 बजे से पहले कंकरी मार लेना है। लेकिन बाल मुंडाने में थोड़ा एहतियात करें। 2 बजे का टाइम दिया है कुर्बानी का, तो आप 4 बजे बाल मुंडावें, 4:30 बजे बाल मुंडावें, इसलिए कि ज्यादातर अइम्मा किराम, यह हजरत इमाम, ज्यादातर नहीं, हजरत इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कंकरी मारने, कुर्बानी करने और बाल मुंडाने, इन तीनों अमल में तरतीब वाजिब है, तरतीब वाजिब है। खिलाफे तरतीब अगर होगा तो दम वाजिब हो जाएगा, खिलाफे तरतीब होगा तो दम वाजिब हो जाएगा। तरतीब वाजिब है। जब तरतीब वाजिब है तो कंकरी मारने के बाद कुर्बानी होनी है, और कुर्बानी के बाद ही सर मुंडाना है। लिहाजा आप पहले आकर के कुर्बानी कर ले, कंकरी मार लें, और कंकरी मारने के बाद मसलन 2 बजे 2:30 बजे का बैंक ने आपको टोकन दिया है कुर्बानी का, एहतियातन 2 घंटे की ताखीर से आप बाल मुंडावें, ताकि 2 घंटे में यकीनी तौर पर आपकी कुर्बानी लेट सेट भी हुई होगी तो हो चुकी होगी 2 घंटे में। अब 4 साढ़े 4 बजे आपने बाल मुंडा लिया, बाल मुंडा लिया तो आप हलाल हो गए, किससे? एहराम से, हज के एहराम से हलाल हो गए। आज आपका हज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोया पाए तकमील को पहुंच रहा है। अब हज के वाजिबात तो हैं, एक फर्ज बाकी है। वो फर्ज कौन सा है? तवाफ़े ज़ियारत। अब आप उसी दिन अगर तवाफ़े ज़ियारत को चले जाते हैं तो 10वीं ज़िलहिज्जा को तवाफ़े ज़ियारत अफजल है, अफजल है। लेकिन चूंकि सारी दुनिया के लोग और खास तौर पर गल्फ के लोग और बिलखुसूस सऊदी अरबिया के वो लोग जो 3 दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं, 4 दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं, 5 दिन की छुट्टी पर आए हैं, ओमान से आए हैं, कतर से आए हैं, कुवैत से आए हैं, इराक से आए हैं, बहरीन से आए हैं, जॉर्डन से आए हैं और अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से आए हैं, उन सब लोगों को जल्दी से भागना है, ड्यूटी पकड़नी है। वो सब रश लगा देंगे पहले दिन। इसलिए हम लोगों का तजर्बा यह है कि कब करें हम लोग तवाफ़े ज़ियारत? 11 ज़िलहिज्जा को 11 बजे रात में, 11 ज़िलहिज्जा को 11 बजे रात में जी लुघड़ करके भी जाएंगे मसा में सही करने के लिए, तो इंशाअल्लाह कोई आपको कुचलने वाला और आपको रौंदने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत फरागत के साथ करेंगे। तो बहरहाल तवाफ़े ज़ियारत करनी है। तवाफ़े ज़ियारत का वक्त कब से कब तक है? 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर
12वीं ज़िलहिज्जा का आफताब गुरूब होने से पहले 3 दिन, 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा का आफताब डूबने से पहले पहले तवाफ़े ज़ियारत कर लेना है। अगर आज 10वीं ज़िलहिज्जा को कर लिया फबिहा, नहीं किया तो 11 को कर लें, 11 को नहीं किया तो फबिहा, 12 को कर लें। बहरहाल तवाफ़े ज़ियारत कर लें। तवाफ़े ज़ियारत के बाद अगर आपने सही नहीं किया है, ये बीच में चूंकि तरतीब से चली आ रही है बात, इसलिए ये बात पहले नहीं बयान कर सके कि अगर आप मक्के से इहराम बांध करके मिना के लिए जब रवाना हुए थे, अगर उसी वक्त आपने एक नफली तवाफ कर लिया होता और नफली तवाफ करके आपने हज के नियत से सही कर लिया होता सफा और मरवा के दरमियान, तो उस सही के अंदर आपको रमल भी करना था और इस्तिवा भी करना था। अगर उस वक्त कर लिया होता यह सोच करके कि 10वीं ज़िलहिज्जा को भीड़ बहुत ज्यादा होगी इसलिए आजे काहे नहीं, सब तो मिना चला गया, यहां खाली हो गया है, मताफ खाली है, मसआ खाली है, चलो एक तवाफ कर लेते हैं नफली तवाफ। लेकिन नफली तवाफ में इस्तिवा भी करें और रमल भी करें इहराम की हालत में, और सही भी कर लें, और सही करने के बाद नियत करें किस सही की, हज के बाद वाली सही की, कि ये 3-4 दिन 5 दिन तो बहुत ज्यादा थके थकाए रहेंगे, ये सही आधा किलोमीटर मरवा जाना, आधा किलो वापस आना, 3.5-4 किलोमीटर का चक्कर पूरे एक सही में, लिहाजा पहले ही सही कर लो। तो अगर वो कर लिया तो आज तवाफ़े ज़ियारत 10वीं ज़िलहिज्जा को कर लीजिए, सही की जरूरत नहीं। और अगर सही पहले नहीं किया था हज से पहले तो तवाफ़े ज़ियारत कीजिए, उसके बाद सही भी कर लीजिए। और ये दोनों चीज अपने लिबास में हो सकती है, सिले हुए कपड़े में, इसलिए कि जब आपने मिना में कंकरी मार लिया और 2 बजे दिन में बैंक ने आपकी कुर्बानी कर दिया और 4:30 बजे आपने अपना सर मुंडा लिया तो आप एहराम से हलाल हो गए। अब आपके लिए सिले हुए कपड़े पहनना, सर ढाकना, खुशबू लगाना, नाखून तराशना सब कुछ जायज हो गया। लिहाजा अब जो आप आए हैं तवाफ़े ज़ियारत के लिए तो अपने कपड़े में तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। इस तवाफ के अंदर एहराम की चादर है ही नहीं कि इस्तिवा हो, और चूंकि सही अब करनी नहीं है, सही पहले कर चुके हैं, लिहाजा इस तवाफ में रमल भी नहीं करना। रमल ऐसे तवाफ में होता है जिस तवाफ के बाद सही होती है, यह कायदा कुल्लिया समझ लीजिए। हर वो तवाफ जिसके बाद सही होगी उस तवाफ में रमल भी होगा, और जिस तवाफ के बाद सही नहीं होगी उसमें रमल नहीं होगा। 10वीं ज़िलहिज्जा तवाफ़े ज़ियारत कर लिया, अब रात आकर के मिना में गुजारना मसनून है, सुन्नत है। मिना में ही रात आकर के गुजारें, मक्का ही में अपने होटल में न रह जाएं, मिना में आकर के गुजारें, यह सुन्नत है। और हम उस नबी की उम्मत है, हमने सारा काम किया है अल्लाह को राजी करने के लिए, उसके नबी के तरीके पर अंजाम देने के लिए। ये 5 लाख रुपया हम खर्च करके जा रहे हैं, नाम आवरी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अपने नाम के साथ हाजी साहब लिखवाने के लिए नहीं। हमने अल्लाह को राजी करने के लिए हज किया है, उसके नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक करने की कोशिश किया है। लिहाजा रात मिना के अंदर आकर के गुजारें। अच्छा, रात गुजार लिया मिना के अंदर, अब 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा इन 2 दिनों में क्या काम करना है? इन दोनों दिनों में मिना में तीनों जमरात पर कंकरी मारना है। लेकिन इस कंकरी का वक्त कल जो गुजरा है 10 ज़िलहिज्जा, उसमें कंकरी मारने का वक्त कौन सा था? तुलूए आफ्ताब से लेकर के ज़वाल तक वक्त अफजल, ज़वाल आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक वक्त मुबाह जायज, और गुरूब आफ्ताब से 11वीं ज़िलहिज्जा के तुलूए सुबह सादिक तक वक्त मकरूह। किसके लिए? नौजवानों के लिए, सेहतमंदों के लिए।
लेकिन बीमारों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, कमजोरों के लिए और भीड़ भाड़ की शिद्दत में खतरात महसूस करने वालों के लिए वो भी मकरूह नहीं। आज 11 ज़िलहिज्जा है। 11 ज़िलहिज्जा को कंकरीक मारने का वक्त कौन सा है? बिल इत्तेफाक चारों आइम्मा के नजदीक, दुनिया के तमाम इमामों के नजदीक, सारे मुहद्दिसीन के नजदीक ज़वाल के बाद वक्त शुरू होता है। ज़वाल से पहले किसी के नजदीक भी कंकरी मारने का वक्त शुरू नहीं होता है। 11 को 12 तरतीब के साथ अल जमरतुस सुगरा जो मिना की वादी से करीब है, उसके बाद अल जमरतुल वुस्ता, अल जमरतुस सोना जो मस्जिद खीफ के सामने, उसके बाद अल जमरतुस वुस्ता, उसके बाद अल जमरतुल अक़बा, अल जमरतुल कुबरा, अल जमरतुस वो अखीरा, कुछ भी कहते। तरतीब के साथ कंकरी मारना है, साथ साथ कंकरी मारना है, साथ साथ कंकरी मारना है। कंकरी मारते वक्त कंकरी को 2 उंगलियों के दरमियान लें। ये कंकरियां जो चुने तो बड़ी बड़ी कंकरी नहीं ले लें जो पत्थर का टुकड़ा हो कि किसी बेचारे के सर पर लग जाए तो उसके सर को जख्मी कर दे। छोटी छोटी कंकरियां चने के दाने के बराबर, चने के दाने के बराबर, इतनी छोटी भी नहीं जैसे मसूर और राई का दाना कि पता ही नहीं चले, बल्कि पता भी चले लेकिन अगर किसी को लग जाए तो जख्मी भी ना करे। साथ साथ कंकरी मारना है, अलग अलग मारना है। अगर सातों कंकरी एक मर्तबा मार दिया तो उससे अदा नहीं होगा, वो एक ही कंकरी मारना शुमार होगा, एक ही कंकरी शुमार होगी वो। लिहाजा सातों कंकरी अलग अलग मारते वक्त हाथ को उठाएं, इतना उठाएं कि आपके बगल की पट्टी सफेदी नजर आने लगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मल शैतान व रिज़ल रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सायम मशकूरा व ज़म्बम मग़फूरा। जिसको याद हो फबिहा, याद ना हो तो मसनून दुआएं याद करनी चाहिए, और अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके फेंक दे। दायरे के अंदर गिरना चाहिए उसको, यह जरूरी है। बाहर अगर गिर गया दायरे से बाहर तो वो काउंट नहीं होगा, वो उसके बदले में एक मार आपको फेंकना होगा। दीवार के ऊपर, अब जो पहले तो ये इतना मोटा सुतून था, ये जिससे ये टेक लगाए हुए हैं हमारे भाई साहब, इतना मोटा सुतून था पहले, और दायरा भी उसका बस जैसे हम लोगों के देहात में गाय माल को लगाने के लिए, सानी डालने के लिए, चारा डालने के लिए जो थल्ला होता है, सिर्फ उतना ही बड़ा थल्ला था। बाद में फिर और ज्यादा उसको बढ़ाया गया, लेकिन अब तो ये है कि ये यहां से लेकर के उस दीवार नहीं, वहां तक की दीवार, वहां तक दोनों तरफ से दीवार डाल दी गई, और दोनों तरफ से ऐसा उसको प्लास्टर इतना ज्यादा चिकना बनाया गया है कि कोई कंकरी दरमियान में अटक ही नहीं सकती है, हर हाल में उसी सुकून के नीचे ही जाकर के गिरेगी। बहरहाल आपने 10वीं तारीख को अल जमरतुल अक़बा की रमी किया, उस रमी के करने के बाद दुआ नहीं है, वहां पर खड़े होकर के दुआ नहीं मांगना है, दुआ नहीं करना है। लेकिन जब दूसरे दिन रमी करेंगे तो पहले अल जमरतुल सगीरा पर कंकरी मारा, कंकरी मारने के बाद जरा हट जाए किनारे और वहां पर क़िबला रू होकर के दुआ करें, खूब दुआएं मांगे। फिर आगे बढ़ें और अल जमरतुल वुस्ता पर 7 कंकरी मारें, वहां भी कंकरी मारने के बाद किनारे हट जाएं जरा और साइड हो करके क़िबला रू हो करके खूब दुआएं मांगे। उसके बाद आगे बढ़ें, अल जमरतुल अक़बा के ऊपर रमी करें, 7 कंकरी वहां मारें, लेकिन वहां कंकरी मारने के बाद दुआ नहीं करेंगे। भाई मुसलमानी यही है
کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جتنی بات کا جیسے ہم کو حکم دیا ویسے کرنا ہے، اس کے خلاف کریں گے تو بجائے ثواب کے سنت کو ترک کرنے کا اور سنت کی مخالفت کرنے کا وبال ہوگا۔ جیسے ہم نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے وقت میں ہم نے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھا، اب تلبیہ پڑھتے رہیں گے، اوپر چڑھ رہے ہیں، ہوائی جہاز اوپر اڑ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک گنگنا دیجئے بالکل جہاز کو، مرد حضرات، عورتیں بالکل آہستہ آواز سے کہیں۔ نیچے اترنے لگا جہاز جدہ ایئرپورٹ پہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس پہ چڑھنے لگے جدہ ایئرپورٹ پہ، بس سے اترنے لگے مکے میں، داخل ہونے لگے حرم شریف میں، ہر جگہ تلبیہ پڑھتے رہے، لیکن جب حجر اسود کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے کائے کے لیے؟ طواف شروع کرنے کے لیے، تو اب تلبیہ بند ہو گیا، عمرے میں تلبیہ بند، جتنا سا حکم ملا اتنا سا کریں گے۔ اپنی طبیعت سے عقل اور قیاس کا گھوڑا دوڑا کر کے کام نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب حج کا احرام باندھا مسجد حرام میں تلبیہ پڑھا، منی میں تلبیہ پڑھتے رہے، عرفات میں تلبیہ پڑھتے رہے، مزدلفہ میں تلبیہ پڑھتے رہے، 10ویں ذی الحجہ کو جب جمرۃ العقبہ کے اوپر پہنچے کنکری مارنے کے لیے، تلبیہ روک دیا، تلبیہ روک دیا، اب بند ہو گیا تلبیہ۔ حالانکہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اے اللہ حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے، اللہ کی عظمت کو اپنے زبان سے بول کر دلوں میں بیٹھانا ہے، یہ یقین دہانی کرانی ہے۔ لیکن اتنے عظیم تلبیہ کو اللہ کے رسول نے جو فرمایا یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں پہ بند کرنا ہے، جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے پہنچے تلبیہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے جب تک ہم رہیں گے تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ اب تلبیہ پڑھنا ویسے ہی غلط ہے جیسے اس سے پہلے تلبیہ پڑھتے رہنا صحیح تھا۔ اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا جیسے سنت تھا، اب تلبیہ پڑھنا خلاف سنت ہو۔ 12 13 11 کی رمی کر لیا، 12 کو بھی رمی کر لیا، اب اگر چاہا 13 کو بھی رمی کر کے جانا ہے تو 13 کی رمی کا بھی وقت زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، لیکن متاخرین علماء نے 13ویں ذی الحجہ کے سلسلے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی طلوع آفتاب کے بعد ہی کر لے تو اس کے لیے وہ بھی جائز ہے، مباح ہے۔ ہو گئے فارغ، کر لیا تھا طواف زیارت بھی جو طواف فرض تھا، سعی بھی کر لیا، اب اس کے بعد مکے میں رہیے، حرم شریف میں رہیے، پابندی کے ساتھ مسجد حرام کی حاضری کو یقینی بنائیے، ہر نماز 1,00,000 گنا نماز کے بقدر کا ثواب پاتے رہیے۔ اب اس کے بعد آپ کے اوپر آخری چیز ہے کہ اب اگر آپ کو مدینہ لے جایا جا رہا ہے اور مدینے ہی سے آپ کو روانہ کر دیا جائے گا ہندوستان کے لیے، یا مدینہ سے جدہ پہنچا کر کے آپ کو ہندوستان کے لیے روانہ کیا جائے گا، تو مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے آپ کے اوپر واجب ہے طواف وداع، طواف صدر، طواف صدر بھی اس کو کہتے ہیں اور طواف وداع بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ طواف وداع کر لیں، طواف صدر کر لیں۔ اس طواف کے اندر نہ تو نہیں اس طواف کے اندر نہ تو استوا ہے، نہ رمل ہے، نہ احرام ہے، اپنی چادروں میں طواف کرنا ہے۔ طواف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عمر کے اندر برکت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، اور بار بار اپنے گھر آنے کی سعادت و توفیق عطا فرماتا رہ۔
ये टूटी फूटी चंद बातें जो आपके सामने इकबाल अहमद अर्ज कर चुका वो तो कर चुका। अब मुजफ्फरपुर वाले भाइयों के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल रहीम साहब उस्ताद मदरसा इस्लामिया जामिउल उलूम चंदवारा मुजफ्फरपुर सफर हज में आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। इस साल भी आप पता लगा लेंगे मौलाना का किस बिल्डिंग में वो इनकी जगह है, कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज आ जाती है। अगर कोई नंबर वगैरह लेना चाहेंगे ले लेंगे, और जो इस तरीके की छोटी मोटी बातें हों इंशाअल्लाह इनसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, पूछगछ करते रहेंगे। मां बदौलत भी इंशाअल्लाह हाजिर है। अगर मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद हो तो इंशाअल्लाह आप हजरात भी अगर याद करेंगे किसी हुक्म के सिलसिले में, मसले के सिलसिले में, तो इंशाअल्लाह मेरी खिदमत भी आप हजरात को हासिल रहेंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सफर हज को आसान फरमाए। अल्लाह ताला हज के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर फरमाए, तमाम तर सुऊबतों को दूर करे, मुश्किलात को आसान फरमाए। और आप भी हमारे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमें भी सेहत व आफियत अता फरमाए। अब आगे इसके बाद मदीना मोमेंट है, मदीना मोमेंट अब मौलाना आले हसन साहब आपके सामने बयान कर देंगे। मुझे इजाजत दें। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।